Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our lecture. The topic of the lecture is building IoT with cloud and data analytics. In this lecture, we will cover that how cloud store IoT data and how it works and helps in IoT based systems. For the notes, you will follow the IoT complete notes file, PDF file, and it's page number 60, unit number 4, building IoT with cloud and data analytics. An IoT platform is a multi-layer technology. हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं कि it is based on different layers that enables straightforward provisioning, and the working of these layers are receiving the data and networking connectivity, provides it networking connectivity and interface for user use. And these layers use different protocols for security, for authentication, or for transfer of data. It basically connects your hardware, however, diverts to the cloud by using flexible connectivity options, enterprise-grade security mechanism, and broad data processing power. IoT platform can be wearing different hats depending on how you look at it. It means that IoT के different modes हैं or different uses or different applications हैं. It depends on you that how you can use IoT for your requirement. It is also known as cloud enablement platform for IoT enablement platform. इसको जो है cloud platform क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि when you receive data, you need the storage to save. It depends that how large your data. If your data is very large and it has to be accessed from different locations, so you can use cloud for the storage purpose. We have various types of cloud. Finally, under the name of the IoT application enabled platform, it shifts the focus to being a key tool for IoT developers. IoT platform is a middleware. IoT platforms originated in the form of this, which purpose was to function as a mediator between the hardware and application layers. IoT platform किस लिए कि हार्डवेयर और एप्लीकेशन लेयर्स को आपस में लिंक करता है. Its primary task includes data collection from the devices over different protocols and network topologies. इसका प्राइमरी टास्क क्या है कि ये डाटा को कलेक्ट करेगा डिवाइसेस से और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज करेगा, नेटवर्क टोपोलॉजीज अपनी क्रिएट करेगा, रिमोट डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करेगा, आपस के अंदर डिवाइस का कम्युनिकेशन बनाना, सेंसर नोड्स और डिफरेंट नोड्स को जो है इनेबल करना कि वो डाटा को रिसीव करें और सेंड करें. टू बी यूज इन रियल लाइफ हेट्रोजीनियस IoT इकोसिस्टम्स, IoT middleware is expected to support integration with almost any connected devices. This is the framework. Hardware devices, you can use any hardware devices, automotive enable hardware, electronic devices, watches, mobile sensors, tags, RFID tags, mobility. ये सब जो है IoT प्लेटफॉर्म के थ्रू, यानी जिसकी मिडलवेयर लेयर है, जिसके अंदर प्रोटोकॉल्स यूज होंगे, नेटवर्क लेयर्स यूज होंगे और आप इसको एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर देते हैं. Modern IoT platforms go further and introduce a variety of valuable features into the hardware and application layer. They provide components for front-end analytics, on-device data processing. On-device पे data processing होती है, पहले data receive हुआ, process करके देखेगा कि अब उसको क्या decision लेते हैं. For example, एक हमने light on की application पढ़ी थी, तो उसके अंदर क्या data उसने receive किया कि एक room के अंदर लाइट का लेवल इतना है. अब उस डाटा को प्रोसेस करेगा. मुझे एक फ्लो चार्ट डायग्राम थी, इसके अंदर वो डिसीजन लेगा कि अब उसको जो है लाइट ऑन करनी है कि लाइट ऑफ करनी है. वो ये प्रोसेसिंग कहलाएगी. एंड क्लाउड बेस्ड डिप्लॉयमेंट, अगर आपके पास जो है उसकी डिफरेंट बहुत सारे ऑप्शन हैं और उसको स्टोरेज चाहिए या रिमोटली एक्सेस करना है, तो उसकी डिप्लॉयमेंट कहाँ होगी? क्लाउड पे होगी. अच्छा, क्लाउड जो है ये एक अलग से टॉपिक है बाकायदा कंप्लीट कि क्लाउड बेस्ड सर्विसेज क्या होती हैं, how you can register or sign in cloud and avail their facility, which companies provide cloud for storage. There are many platforms, or you can say that there are many modules of cloud. Sometimes we can use cloud only for storage. Sometimes we can design our applications on cloud, deploy there, and also use their storage. There are 3 to 4 types of cloud: PaaS,
SSS, इस तरह करके आपको इसके नाम मिलेंगे, आप इसको खुद भी सर्च कर सकते हैं। मैंने ये टॉपिक आपको बता दिया, मतलब ये क्वेश्चन हो सकता है किसी चीज का अगर टॉपिक में जिक्र किया जाए तो जरूरी नहीं है कि हर चीज टीचर पढ़ाए, आपकी सर्चिंग भी डिपेंड करती है। तो अब आप देख लें, आपको टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्च करने हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्लाउड होते हैं। मैं आपको हिंट के लिए मैंने आपको बता दिया, PSS लिखा होगा, SSS टाइप लिखी होगी, ठीक है, सर्विस एज अ, इसका मकसद ये होता है। Some of them can handle end-to-end IoT solution implementation from the ground up. कुछ जो होते हैं इसके अंदर से क्लाउड बेस्ड डिप्लॉयमेंट, वो एंड टू एंड सॉल्यूशंस देख रहे होते हैं, और कुछ कंप्लीटली जो है पूरा होल एप्लीकेशन उसके ऊपर ही डिप्लॉय होती है। दिस इज द IoT गेटवे। समटाइम्स ऐसा होगा कि हमारे हार्डवेयर हमारे रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करते हैं, हार्डवेयर डायरेक्टली जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं, और कभी हम IoT गेटवे यूज करते हैं, यानी IoT प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, या जो है हमें हमारा कोई ऐसा सेंसर या ऐसी हार्डवेयर डिवाइस जिसको बैटरी लाइफ जो है उसकी कम हो जाती है, उसकी सेंसर नोड्स ऐसी है कि मुस्तकिल ऑन रहने की वजह से बैटरी लाइफ कम होती है, उसको बैटरी की कनेक्टिविटी या जो है बैटरी को चार्ज करने की जरूरत होती है, कोई ऐसा प्रोटोकॉल लगाना होता है जिससे वो बैटरी लाइफ को मेंटेन रख सके, तो उसको IoT गेटवे के थ्रू हम करते हैं इनेबल। इट इज, अच्छा, दिस डायग्राम इज नोन एज IoT प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी स्टैक। तो अगर आपके पास ये ड्रॉ करने का है IoT प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी स्टैक, तो दिस इज द डायग्राम। एप्स कौन कौन सी है, वो एप्स में क्या क्या काम करेगा, एक तो ये कि अलर्ट कर सकता है, एनालिटिक कोई व्यू रिपोर्ट आपको दे सकता है, रिपोर्टिंग कर सकता है, या जो है आपको जस्ट वो ऑप्शन परफॉर्म करके दे सकता है। कोर IoT फीचर्स क्या है, IoT के अपने मेन फीचर्स हैं कि उसका सबसे पहला काम तो है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन होगी तो ही वो आगे काम करेगा, क्योंकि हम इसमें क्या है ऑटोमेटिक ऑटोमाइजेशन पे ला रहे हैं ना हर चीज को, तो ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं होगा कि कोई बिल्ट इन फाइल आपने यूज कर ली, नेट से कोई डाटा उठाया हुआ एक्सेल फाइल आपने लगा दी। ये हम जब अपनी कोई IoT के कोई भी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, और उसके अंदर क्या होता है हमें टेस्टिंग करनी है, अब हमारे पास इतना डाटा नहीं है कि हम जो है बहुत सारी टेस्टिंग कर सकें और फिर रिजल्ट अपना एनालाइज करें, तो हम क्या करते हैं, कोई भी जब प्रोजेक्ट बनाते हैं आपको उसका डाटा फाइल्स मिल जाती है, एक्सेल बेस मिलती है, PDF है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरह से, तो क्योंकि और लोगों ने भी उस पर रिसर्च की हुई होती है तो अपना डाटा वहाँ पे इंसर्ट करते हैं। थोड़ा मुश्किल होती है उसको डाटा को फाइंड आउट करने में, हमने FYP में यूज किया था, हमारा FYP भी इसी तरह से रिलेटेड था कि उसको जो है रन टाइम पे काफी सारे रिजल्ट्स चाहिए थे, और उन रिजल्ट्स के ऊपर उसको ब्रेन में प्रोसेसिंग करनी थी, तो ब्रेन सिग्नल्स की प्रोसेसिंग करनी थी। अब हम फॉरेन से तो इतना सारा डाटा नहीं ले सकते थे, हमें अपनी एवल्यूशन देनी थी, तो उसके लिए क्या हुआ कि हमें फाइल्स वहाँ पे अवेलेबल मिली इंटरनेट पे, जो कि हमने डाउनलोड करनी, उसके राइट्स होते हैं, किसी सुपरवाइजर के थ्रू उनको डाउनलोड करवाया और फिर उसको अपने सिस्टम में रन किया, तो तकरीबन 40 से 50 लोगों का डाटा हमारे पास आ गया। वो डाटा उसके अंदर उन्होंने रन किया और से एग्जीक्यूट करवा दी फाइल, तो ये चीज, ये मतलब अगर हम उसको करवाने हैं वो सेफ बेस्ड प्रोग्रामिंग कहलाएगी। लेकिन वो फिर आपका बात के बाद आपने टेस्ट कर लिया, आपको पता चल गया कि आपका इक्विपमेंट या आपकी डिवाइस सही काम कर रही है, उसके बाद आप जो है रिक्वायरमेंट डिफरेंट लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, डिप्लॉयमेंट करें, जो भी करें आप उस तरह से कर सकते हैं। एन आई, अच्छा यहाँ पे इसके वो देख लेते हैं, यू कैन आल्सो यूज एन IoT गेटवे टू कन्वर्ट प्रोटो। IoT गेटवे किस लिए यूज होता है, फॉर एग्जांपल आपने जो डिवाइसेस यूज की हैं उनके में प्रोटोकॉल्स आप कोई और से यूज कर रहे थे, या जो आपका फ्रंट एंड सिस्टम था वो कोई और से प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हैं, लेकिन उन डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए, या फिर क्लाउड पे डिप्लॉय करवाने के लिए, या फिर जो है डिफरेंट जगह से एक्सेस करवाने के लिए आपको किसी दूसरे प्रोटोकॉल की जरूरत है, तो IoT गेटवे हेल्प्स टू कन्वर्ट और हेल्प्स टू engage different protocols. For example, when your endpoints are in LoRaWAN, LoRaWAN भी एक प्रोटोकॉल है, हमने 5-6 प्रोटोकॉल्स के नाम पढ़े थे उसके अंदर से नेटवर्क, बट यू नीड देम टू कम्युनिकेट विद द क्लाउड ओवर MQTT। LoRaWAN पे आपने काम किया, लेकिन जब आप क्लाउड के पास जाने हैं अपना डाटा पुश करने के लिए, तो वहाँ पे MQTT सर्वर अवेलेबल है या MQTT प्रोटोकॉल अवेलेबल है, तो उन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए यू हैव टू यूज IoT gateway. An IoT platform itself can be decomposed into several layers. At the bottom, there is the infrastructure level. जो बॉटम लेयर्स है हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे सेंसर और सब चीजें लगी हुई इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल कहलाती है, विच इज समथिंग दैट इनेबल्स द फंक्शनिंग ऑफ द प्लेटफॉर्म। You can find here components for container management, internal platform messaging, orchestration of IoT solution, clusters and others. The communication layer enables messaging for the device. Communication layer क्या करती है, enable करती है messaging को
फॉर डिवाइसेस, यानी कि नोड्स एक दूसरे को कम्युनिकेट करती हैं बाय पासिंग, जो पैकेट्स या डाटा ट्रांसफर हो रहा है उसको मैसेजिंग का वर्ड दिया है, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सी लेयर यूज करते हैं, कम्युनिकेशन लेयर। इन अदर वर्ड दिस इज वेयर डिवाइसेस कनेक्ट टू द क्लाउड टू परफॉर्म डिफरेंट operations. Following layer represents core IoT features provided by the platform. Uh, among the essential ones are data collection, device management, configuration management, messaging, OTA, software updates. ये नाम ऊपर भी लिखे हुए थे। ये सब चीज, ये जो सारे काम है कोर IoT फीचर्स कहलाते हैं। पूछा जा सकता है भाई व्हाट आर दी, राइट द, मेंशन द नेम्स ऑफ द कोर IoT फीचर्स ऑफ IoT, ठीक है। Sitting on top of core IoT features, there is another layer. जब आप IoT फीचर से ऊपर की बात करें तो हमारे पास एक और लेयर मौजूद है। कहाँ पढ़ रहे थे हम? Which is less related to data exchange between devices but rather to processing of this data in the platform. इस लेयर के काम है कि डाटा को प्रोसेस करवा रही है। There is reporting which allows you to generate custom reports. आपका जो काम हो उसके हवाले से कोई कस्टम रिपोर्ट मिल जाए, हर चीज जो है वो जो प्रोसेस हुई है, आज के दिन कितनी दफा लाइट ऑन एंड ऑफ हुई है, इसकी रिपोर्टिंग, ठीक है। और कोई और एक्टिविटी हुई है जिसकी आपने रिपोर्ट बना के, ताकि वो आपके पास सिस्टम में सेव रहे। There is visualization for data representation in user application. Then there are a rule engine, analytics and alerting for notifying you about any anomalies detect in your IoT solution. अच्छा, और इसके अंदर आप अलार्मिंग सिस्टम लिख सकते हैं, मैसेजिंग सिस्टम रख सकते हैं। अगर आपको कोई IoT जो आपने बनाया हुआ है सिस्टम, उसके अंदर कोई एनोमली डिटेक्ट। Important, the best IoT platforms allow you to add your own industry specific components. अब बेस्ट IoT प्लेटफॉर्म क्या है, वो आपको इंसिस्ट नहीं करेगा कि आप स्पेसिफिकली यही कंपोनेंट्स यूज करें, बल्कि आप जो भी कंपोनेंट्स यूज करना चाह रहे हैं वो सिस्टम में कंपैटिबल हों। Without such flexibility, adapting IoT platform for a particular business scenarios could bear significant extra cost and delay the solution delivery in depth. एंड अगर आपके सामने एडवांस IoT प्लेटफॉर्म्स का जिक्र हो तो उसके अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग जो है आप उसका नाम ले सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड से भी एडवांस जो है वो हमारे पास है फॉग कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग को जो है IoT प्लेटफॉर्म्स का एडवांस वर्जन कहा जाता है। एडवांस IoT प्लेटफॉर्म्स इंश्योर इलास्टिक स्केलेबिलिटी अक्रॉस एनी नंबर ऑफ एंड पॉइंट्स दैट द क्लाइंट मे रिक्वायर। अच्छा, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक होमवर्क बताया था, वो क्या था इस लेक्चर का होमवर्क, कि आपको क्लाउड की टाइप सर्च करनी है। दूसरा होमवर्क ये बता रही हूँ डिफरेंस बिटवीन क्लाउड एंड IoT, क्योंकि ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं लेकिन इनके अंदर कुछ माइनर सा डिफरेंस है, वो आपको सर्च आउट करना है। ये सारा होमवर्क आपको अपनी कॉपी पे करना है, ताकि जब आप एग्जाम्स के लिए रिवीजन करना शुरू करें तो उस टाइम तो आपको एक एक वीडियो खोल के देखनी ना पड़े। दिस कैपेबिलिटी इज टेकन फॉर ग्रांटेड फॉर पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट्स बट इट शुड बी स्पेसिफिकली पुट ऑन टू द टेस्ट। कस्टमाइजेबल, अब हम यहाँ आ जाते हैं IoT क्लाउड इनेबलिंग। An IoT cloud is the pinnacle of the IoT platform's evolution. Sometimes these two terms are used interchangeably. मैंने बताया ना कि थोड़ी देर पहले कि IoT और cloud दोनों बहुत मिलते जुलते हैं, इनके applications almost same है, लेकिन इनके अंदर कुछ minor से ही difference है। In which case the system at hand is typically an IoT platform as a service. ये मैंने जो कहा था PaaS, जो एक क्लाउड की टाइप बताई थी, तो ये उसका फुल फॉर्म लिखा है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस PaaS। दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन अलाउज, अब यहाँ पे टाइप्स की कहीं कहीं टाइप्स की जो है एक्सप्लेनेशन दी जा रही है। दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन अलाउज यू टू रेंट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये PaaS क्या करता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, हम इस प्लेटफॉर्म को सिर्फ एज अ सर्विस के लिए यूज कर रहे हैं, क्लाउड स्टोरेज के लिए यूज कर रहे हैं। तो जिस भी कंपनी का क्लाउड आप यूज कर रहे हैं, अमेजोन का क्लाउड होता है और गूगल का है और डिफरेंट है, अभी आगे हमें शायद नाम मिल जाएंगे, तो उनसे आप जो लाइसेंस लेंगे, जो उनको रेंट देंगे, वो किस सर्विस का देंगे कि हमें उनकी सिर्फ स्टोरेज सर्विस यूज करनी है। There might be ready to use IoT solutions, IoT cloud services offered by the provider, built and hosted on its infrastructure. ऐसी क्लाउड सर्विसेज जो कि ऑलरेडी बिल्टेड हैं और जो है उसको हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे होस्ट कर सकते हैं। वन इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटी ऑफ अ मॉडर्न IoT प्लेटफॉर्म कंसिस्ट इन अ प्राइवेट IoT
cloud enablement. This type of deployment offers much greater control over the new features development. Arduino, अच्छा अब हम IoT IoT थ्योरी ये सब चीजें तो काफी पढ़ ली, लेकिन IoT को आप डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं? हमने एक माइक्रो कंट्रोलर्स पढ़े थे। अब माइक्रो कंट्रोलर से भी अगर हम एडवांस वर्जन में गए तो फिर हमारे पास बोर्ड्स आते हैं कि किन बोर्ड्स के ऊपर हम काम करते हैं। कि माइक्रो कंट्रोलर अगर आप यूज करते हैं वो ब्रेड बोर्ड या वो वेरो बोर्ड, उसके ऊपर लगाएंगे, सोल्डिंग करेंगे, फिर उसकी पेन्स और जंपर्स और ये सारी चीजें आपने करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमारे पास क्या आते हैं? बोर्ड्स आते हैं। उन बोर्ड्स पे माइक्रो कंट्रोलर और डिफरेंट इनपुट आउटपुट टाइमर्स ये सब चीजें जो है ऑलरेडी बिल्ट इन होती हैं और आपको सिर्फ उनके इन आउट्स यूज करने होते हैं अपनी डिवाइस के साथ। पावर सप्लाई वगैरह हर चीज की वहाँ पे जो है आपने पढ़ाई होंगी, शायद बोर्ड नहीं पढ़े तो मैं भी पढ़ा देती हूँ। आर्डिनो और रास्पबेरी पाई इनमें से दो बोर्ड्स ऐसे हैं। इनकी प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग हम कंप्यूटर पे करते हैं, सॉफ्टवेयर बता दिया जाता है कि ये इसका सॉफ्टवेयर है। वो प्रोग्रामिंग फाइल जो है आप इसके अंदर बर्न करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका बोर्ड जो है वो काम करने लगता है। तो उन्होंने आपके हार्डवेयर का काम कर, बार बार सब लोग एक ही काम करें, उसको जोड़े तोड़े, और फिर हार्डवेयर का जो इनिशियल काम है वो इन बोर्ड्स में हुआ। अब उसके अलावा का जो हमें हार्डवेयर बनाना है वो आपको करना है। जिस तरह से IoT के अंदर आपको प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, अब उस प्रोजेक्ट में मैंने काफी सारी एप्लीकेशन आपको बता भी दी थी, कुछ आपने खुद भी सर्च करना है और आई होप कि आपने सर्च नहीं किया होगा, तो बच्चों से यही उम्मीद है मुझे, लेकिन आपको करना है क्योंकि अब आपके फाइनल पेपर होंगे तो उसके अंदर आपकी ये प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन इंक्लूड है। अब मैंने आपको आइडिया ये दिया था कि ऑर्डिनो और जो है रास्पबेरी पाई का बोर्ड शायद आप लोगों को स्टूडेंट्स के पास ना मिले, लेकिन ऑर्डिनो का आपको किसी के पास मिल सकता है। आप उनको अपनी प्रोजेक्ट रनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, वरना फिर 3-4 लोग मिलकर एक ऑर्डिनो का बोर्ड ले लें। मैं एम्फेसाइज नहीं कर रही कि आप ऑर्डिनो ही यूज करते हुए बनाएं, लेकिन आप इसकी वीडियोस देखें, बजाय से अगर आप माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर जाते हैं इनके दोनों के कंपैरिजन देख लें, फिर जिसमें भी आपको काम करना हो आप माइक्रो कंट्रोलर यूज करें। माइक्रो कंट्रोलर आपको शायद जो है लैब में भी अवेलेबल हो जाए। ऑर्डिनो रास्पबेरी पाई जिस पे भी काम करना है, साथ ही साथ क्या होगा इसमें आपको जो लेटेस्ट चीजें है ना वो यूज करनी आएगी, इसकी प्रोग्रामिंग करनी आ जाएगी। दो चीजें आप एक साथ सीख लेंगे, हार्डवेयर कैसे बनाना है और प्रोग्रामिंग कैसे करना है, और आपको लैब में जो टेक्नीशियंस हैं उनसे इसके बारे में हेल्प भी मिल सकती है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सर्किट बोर्ड विच कैन बी प्रोग्राम। आर्डिनो को बता रहे हैं एक ऐसा सर्किट बोर्ड है जो कि आप प्रोग्राम कर सकते हैं, रेफर टू एज अ माइक्रो कंट्रोलर। जिस तरह की प्रोग्रामिंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल 7 सेगमेंट रन करना है, या इसके अंदर एलईडी लगी हुई, एलईडी को ब्लिंक करवाना है, किसी खास पैटर्न से ब्लिंक करना है, वही आप प्रोग्राम बना के इसके अंदर जो है फाइल डम कर देंगे। और फाइल रिमूव करनी है या बोर्ड का रीस्टार्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, तो आपका फाइल जो है वहां से रिमूव हो जाएगी। विच इज यूज टू राइट एंड अपलोड द कंप्यूटर कोड टू द फिजिकल बोर्ड। की फीचर्स ऑफ आर्डिनो। आर्डिनो बोर्ड्स आगे हमारे पास इसकी जो है पिन डायग्राम सब चीजें हैं वो भी देख लेंगे। आर्डिनो बोर्ड्स आर एबल टू रीड एनालॉग और डिजिटल इनपुट सिग्नल्स। आप इसके अंदर एनालॉग डाटा भी दे सकते हैं और डिजिटल भी डाटा दे सकते हैं। इसके लिए आपको कोई A to D कन्वर्टर अलग से लगाना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप माइक्रो कंट्रोलर यूज करेंगे तो माइक्रो कंट्रोलर में आपको लगाना पड़ेगा। फ्रॉम डिफरेंट सेंसर्स एंड टर्न इट इनटू एन आउटपुट सच एज एक्टिवेटिंग अ मोटर। हाँ, आपने क्या किया, सिग्नल लिया, अब आपको आउटपुट रिसीव हो जाएगा, चाहे मोटर एक्टिवेट करनी है, चाहे एलईडी ऑन ऑफ करनी है, कनेक्ट टू द क्लाउड एंड मेनी अदर एक्शंस। यू कैन कंट्रोल योर Unlike most previous programmable circuit boards, Arduino does not need an extra piece of hardware. पहले क्या होता था, कुछ जिस तरह के बोर्ड से चीजें अवेलेबल होती थी, आपको एक प्रोग्रामर के नाम की एक डिवाइस भी चाहिए होती थी, वो उससे लिंक होती थी, उसके बाद उसके अंदर जो है कोड बर्न होता था। जबकि Arduino में क्या आप जस्ट USB केबल के थ्रू उसको कनेक्ट कर सकते हैं। Arduino बोर्ड्स की भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर नीड्स की बैटरी पावर कितनी चाहिए, एनालॉग इनपुट चाहिए देना है या डिजिटल, उस हिसाब से आप ऑर्डिनो बोर्ड अपना डिसाइड करेंगे। पहले प्रोजेक्ट डिसाइड करेंगे, फिर प्रोजेक्ट में अगर ऑर्डिनो यूज हो रहा है तो प्रोजेक्ट ऑर्डिनो की टाइप देखेंगे कौन सा यूज कर रहे हैं।
और डिफरेंट बोर्ड्स के जो डिफरेंट डिफरेंसेस हैं आपस में, वो किस बेस पर है? उसकी स्पीड के बेस पे, ऑपरेटिंग वोल्टेजेस के बेस पे, और नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट की बेस पे है। जैसे कि यहाँ पे है Arduino UNO R3, 5 वोल्ट इसका ऑपरेटिंग वोल्ट है, इसकी क्लॉक की स्पीड आ गई। डिजिटल इनपुट इसके अंदर 14 है और एनालॉग इनपुट 6 है। अगर आप कोई इस तरह का प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसके अंदर आपको 46 से ज्यादा एनालॉग इनपुट्स देने की जरूरत है और डिजिटल इनपुट का आपके पास काम नहीं है, इससे कम यूज हो रहे हैं 14 से कम, तो आप जो है फिर कोई और सा हमारे पास जो बोर्ड होगा उसको यूज करेंगे। PWM पल्स विद मॉड्यूलेशन, ठीक है। प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या है? USB के जरिए कर सकते हैं या ATmega 16E2 माइक्रो कंट्रोलर, उसके जरिए आप कर सकते हैं, ठीक है। ये इतने सारे आपके पास रेंजेस हैं डिसाइड करने के लिए, और मोस्टली जो स्टूडेंट लेवल के ऊपर बच्चे यूज कर रहे होते हैं वो यही वाला होता है। इसमें आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो जाती है। ऑर्डिनो इथरनेट, अगर आप कोई नेटवर्किंग बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं इसमें डाटा ट्रांसफर और ये सारी चीजें मौजूद है और नेटवर्क प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, ऑर्डिनो बोर्ड जिसके अंदर ये वाला माइक्रो कंट्रोलर यूज हुआ हो तो उसके ये बोर्ड्स के नेम है और ये इनकी सारी रिक्वायरमेंट्स है। आप लोग 2-3 वीडियोस देखें ऑर्डिनो बेस्ड एप्लीकेशंस, तो आपको बहुत सही से समझ में आएगा कि ऑर्डिनो पे काम करना कितना आसान है। अच्छा, यहाँ पे क्या दिए? पिन कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, नंबर्स दिए हुए हैं, उन नंबर से रिलेटेड डाटा नीचे लिखा हुआ है। ये किस लिए है, ये किस लिए है, USB जैक है, और ये TX RX इसकी रजिस्टर्स होती हैं, और ये LED किस तरह से ब्लिंक होती है। ये LED जब आपका पावर USB कनेक्ट होगी तो ये ऑन वाली जो LED है वो आपकी रन होगी। ये आपका माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे लगा हुआ है। एनालॉग इनपुट की पिन है A0 से लेके A5 तक, और ये डिजिटल इनपुट की पिन्स यहाँ पे दी गई हैं, ये रही। और मजीद पढ़ लेते हैं इसके बारे में, रीसेट कैसे करने, 5 वोल्ट और रीसेट, ये सब बटन लाजमी आपने जो है जंपर्स के थ्रू रेडी रखने हैं। नंबर 1 क्या है? पावर USB। कहाँ है नंबर 1? ये रही, ठीक है। आप इसको USB के जरिए पावर देंगे। फिर पावर बैरल जैके, इन दो ऑप्शन हैं। आप AC से पावर देना चाहते हैं तो ऐसे, और DC सप्लाई देना चाहते हैं तो ऐसे, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेटर आपके पास अवेलेबल है नंबर 3 पे। फिर क्रिस्टल ऑस्किलेटर, ऑर्डिनो रीसेट करना है तो आपके पास नंबर 5 पे लेबल हुआ हुआ है। बाय यूजिंग द रीसेट बटन 17 ऑन द बोर्ड, सेकंड यू कैन कनेक्ट एन एक्सटर्नल, अगर आप, अच्छा, अगर आपके पास बोर्ड डायरेक्टली आपको नजर आ रहा है, ठीक है, आप बटन दबा सकते हैं, तो 17 के ऊपर जो बटन है आप उसको प्रेस करेंगे तो आपका जो सर्किट है वो रीसेट हो जाएगा, या आपका जो बोर्ड है वो रीसेट हो जाएगा। लेकिन आपने उसकी कोई मॉडल शक्ल बना दी है, उसके ऊपर कोई कवर अप कर दिया और आपको आपका जो है वो नजर नहीं आ रहा है बोर्ड, सिर्फ एप्लीकेशंस जो हैं उसके साथ कनेक्टेड डिवाइसेज हैं वही देख सकते हैं, तो आप साथ में क्या करेंगे, एक बटन उस बॉक्स के ऊपर लगाएंगे। वो बॉक्स, वो जो बटन है वो उसकी पिन नंबर 5 में अटैच होगा, तो आप बाहर से भी रीसेट कर सकते हैं। ये सप्लाई की पिन्स हैं, ग्राउंड की पिन है। Analog pins, the Arduino UNO board has 6 analog inputs. These pins can read the signal from an analog sensor like humidity sensor लगाना है, temperature sensor, और उसको फिर डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट करने ऐसे के। और हमने वही पढ़ा था ना, आप अपने किसी एक गमले के ऊपर प्रैक्टिस करके देख लें कि उसके अंदर मॉइस्ट लेवल कितना है, ठीक है। या आप अपना टेम्परेचर ही सेंस करवा लें। आजकल रात में टेम्परेचर कुछ और होता है, दिन में टेम्परेचर कुछ और होता है, सर्दी और गर्मी, इस तरह का ही टेम्परेचर सेंस करवा के उसको कोई रिकॉर्ड जनरेट कर ले, तो ये सारी चीजें इस तरह से सेंसर्स बेस यूज हो सकती है। मेन माइक्रो कंट्रोलर, ईच बोर्ड हैज इट्स ओन माइक्रो कंट्रोलर, यू कैन अज्यूम इट एज द ब्रेन ऑफ योर बोर्ड। ये आपके बोर्ड का ब्रेन है, ये सही काम करेगा तो बोर्ड काम करेगा। मेन आईसी ऑन द ऑर्डिनो इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम बोर्ड टू बोर्ड, इसके अंदर जो इंटीग्रेटेड सर्किट लगा हुआ है थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। माइक्रो कंट्रोलर्स आर यूजली ऑफ द एटमेल कंपनी, यू मे नो व्हाट आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट योर बोर्ड हैज बिफोर लोडिंग अप अ न्यू प्रोग्राम। आप लोड करेंगे न्यू प्रोग्राम तो वो आपसे जो है इसकी डिटेल पूछेगा, कौन सा माइक्रो कंट्रोलर है और इंटीग्रेटेड सर्किट कौन सा है, आपको सिलेक्ट करना होगा ऑप्शन, तो इसलिए आपको लोड करते वक्त ये सब चीजें पता होनी चाहिए। डेटा शीट अवेलेबल होती है, हाँ, जो भी आर्डिनो बोर्ड होगा माइक्रो कंट्रोलर होगा उसकी डेटा शीट अवेलेबल होती है। डेटा शीट पे ही लिखा हुआ होता है
उसका मॉडल नंबर, ये सारी चीजें, कौन सी पिन किस लिए यूज होगी, कौन सी पिन किस लिए यूज होगी और कैसे यूज होगी, सब चीजें हमारे पास अवेलेबल होगी। Power LED indicator Arduino into a power source to indicate that your board is powered up correctly. अब वो जो हमने दो लाइट्स दिखाई थी TX and RX. On your board you will find two labels, TX मतलब transmit और RX मतलब data transmit कर रहा है और ये data receive कर रहा है. They appear in two places on the Arduino. First at the digital pin 0 and 1 to indicate the pins responsible for serial communication. देख लेते हैं हम. पिन 0 और 1 हमारे पास है और उसके साथ RxTD लिखा हुआ और उन्होंने बताया है ये रहा. जब हम सीरियल कम्युनिकेशन कर रहे होंगे तो ये वाली पिन्स जो है हमें यूज करनी होंगी और ये ब्लिंक करेंगी तो हमें पता चलेगा. और उसके अलावा जो दो सेंटर में थे RxTX, अब मैं दोबारा ऊपर नहीं जा रही. That TX LED flashes with different speed while sending the serial data. अब डाटा कोई भी सीरियल में ट्रांसफर कर रही होगी तो TX LED जो है वो ब्लिंक करेगी. स्पीड ऑफ फ्लैशिंग डिपेंड्स ऑन द बॉड रेट यूज बाय द बोर्ड. अच्छा, जो उसका बॉड रेट होगा, जो फ्रीक्वेंसी का रेट होता है, वो उसके हिसाब से जो है ब्लिंक करेगी, हल्की या तेज. डिजिटल इनपुट्स हैं, पिन्स हैं, ये सब आप खुद पढ़ सकते हैं. अब हमने पढ़ लिया कि इसके मेन पार्ट्स क्या हैं. अब इसको सेटअप कैसे करेंगे, इनके लिए केबल्स कौन सी यूज होंगी, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है. फर्स्ट यू मस्ट हैव योर ऑर्डिनो. आपके पास आर्डिनो बोर्ड आ गया, आपने चूज कर लिया, उसके यूएसबी केबल आपके पास होगी, इसके साथ आएगी, उसको आपने कनेक्ट करना है. फिर आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप, डाउनलोड ऑर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर. आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे अपने पास और इस तरह से सेव फाइल का ऑप्शन आएगा, उसको करेंगे, पावर अप योर बोर्ड करेंगे, यानी कि यूएसबी से कनेक्ट करेंगे तो पावर अप हो जाएगा. फिर जब आप वो फाइल जो आपने डाउनलोड किया है फोल्डर, उसको ओपन करेंगे तो वहां पे ये इस तरह का लोगो आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑर्डिनो का ये जो कह लें कि एडिटर है वो ओपन हो जाएगा. न्यू प्रोजेक्ट में जाके फाइल न्यू करेंगे. अब इसके अंदर बिल्ट इन प्रोजेक्ट भी होते हैं बहुत सारे टेस्टिंग के लिए, कि आप पहले वही प्रोजेक्ट रन करके देख लें. टू ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट एग्जाम्पल, सेलेक्ट फाइल एग्जाम्पल बेसिक पे जाए और क्लिक कर दें. ये आपके पास सारी एग्जाम्पल्स आ रही है. सेंसर्स वाला जो है कोड भी मैंने, सिर्फ आपको उसके प्रोग्राम को समझ के इसमें चेंजिंग करनी होती है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. ठीक है, तो सेमेस्टर प्रोजेक्ट में इसलिए लोग जो है ऑर्डिनो वगैरह यूज करते हैं. और अगर उसमें कर रहे होते हैं तो FYP में तो आपको एप्लीकेशन अपनी तरफ बड़ी रखनी होती है. आप इनमें से भी कोई जो है काम इम्प्लीमेंट करके मुझको दिखा सकते हैं. मैं ये सब चीजें इसलिए दिखा रही हूँ, बाद में कोई ये हमें पढ़ाया नहीं गया था, जबकि ये आपके प्रोजेक्ट का पार्ट है. ये स्टूडेंट्स को खुद ही सर्च करना होता है सब चीज़. ये देखिए मैंने कहा था आपको बोर्ड का नाम पता होना चाहिए, बोर्ड की टाइप पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप टूल्स में जाएंगे वो प्रोग्राम बनाने के बाद, यहाँ से आपने प्रोग्राम रेडी कर लिया, अब आपको टूल्स में जाना है. यहाँ पे आप डिसाइड करेंगे आपका बोर्ड कौन सा है, ताकि वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से रन करे. फिर आपको अपनी पोर्ट का नाम सेलेक्ट करना है. COM3 हमारी पोर्ट होती है, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे. टूल्स में ही करनी है, सीरियल पोर्ट COM3. अपलोड द प्रोग्राम टू योर बोर्ड. अब जो प्रोग्राम आपने बनाया है और यूएसबी से आपका बोर्ड कनेक्ट हुआ है, उस प्रोग्राम को कैसे इसके अंदर ट्रांसफर करना है वो देख लें. ये एक चेक है, चेक का मतलब ये कोई प्रोग्राम में गलती नहीं है, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आया है. बी वाला जो ऑप्शन है, ये एरो बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे फाइल मांगेगा, आपको फाइल अपलोड करनी होगी. सी जो है कोई न्यू स्केच क्रिएट करना तो इससे हो जाएगा. और डी और ई से डायरेक्टली अगर कोई जो प्रोग्राम ओपन करते हैं डायरेक्टली ओपन करना है, या कोई पहले से स्केच बना हुआ है वो ओपन करना है वो कर ले. और ये सब चीजें आपको शो हो जाएंगी और ये एलईडी ब्लिंक होती हुई नजर आ जाएगी बोर्ड के ऊपर. ये आईओटी के प्लेटफॉर्म्स कहलाते हैं, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स, आर्डिनो भी और रास्पबेरी पाई भी. आज हमने जो है इस लेक्चर के अंदर आर्डिनो को कवर किया. ये आर्डिनो की आपके पास एक विजिबल सही से जो डायग्राम है वो आपके सामने. और ये एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करते हैं, इनके कोर्स के अंदर आप चेंजिंग कर सकते हैं. और नॉर्मली जो इसकी प्रोग्रामिंग है वो C++ पर है. ठीक है, अब रास्पबेरी पाई को हम जो है दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आज के लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया है.
तो आज का ये ऑर्डिनो का लेक्चर हम एंड करते हैं। आई होप आप जल्द से जल्द अपना जो है प्रोजेक्ट डिसाइड करके मुझको इन्फॉर्म। और 2 टास्क में दे चुकी हूँ, मैंने कहीं लिखे नहीं ये टास्क, मैं जरा लिख लूँ कौन कौन से टास्क में दिए थे, आप लोग भी नोट डाउन कर लिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 अभी भी जहन में है, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 टाइप कर लेते हैं। सर्च at least 3 different types of Arduino board and write their cost and specification। स्पेसिफिकेशन तो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी, नोट्स में मौजूद है, लेकिन कॉस्ट नहीं मिलेगी आपको। इसकी कॉस्ट देखनी है और ये आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं ये भी देखना है, क्या आपको ऑनलाइन मंगवाना है या आपको फिजिकली स्टोर्स पे अवेलेबल है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने दिया था वो टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख देती हूँ SAASPAAS, ऐसी 2 टाइप्स और, ठीक है। अच्छा, और एक क्वेश्चन मैंने क्या दिया था, देख लेते हैं शायद याद आ जाए, वरना आप लोगों को तो पता नहीं चाहिए, आप वीडियो शुरू से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। टेक्नोलॉजी स्टैक से रिलेटेड होगा शायद। चलिए, मैं आप वीडियो देख के ही अंदाजा करेगा कि क्या क्वेश्चन दिया। फिर जब भी वीडियो देखें, अगर कोई होमवर्क बताया जा रहा है तो साथ साथ उसका क्वेश्चन जो है ना अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लें, ताकि आपको दोबारा से अगेन कोई इशू ना हो। तो आज का ये लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं और इंशाल्लाह फिर दूसरे लेक्चर में मिलेंगे।